जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। गिरिजासुत लंबोदर, गिरिजासुत लंबोदर, एकदंत गजानन, एकदंत गजानन, विघ्नहरण सिद्धिदायक, विघ्नहरण सिद्धिदायक, मन इच्छा पूर्ण करत, गिरिजासुत लंबोदर, गिरिजासुत लंबोदर। जो ही धरत ध्यान, सोहि फल पावे। जो ही धरत ध्यान, सोहि फल पावे। सिद्धिदाता तेरो नाम, सिद्धिदाता तेरो नाम, सुर नर मुनि गुण गावे। गिरिजासुत लंबोदर, गिरिजासुत लंबोदर, एकदंत गजानन, एकदंत गजानन, विघ्नहरण सिद्धिदायक, विघ्नहरण सिद्धिदायक, मन इच्छा पूर्ण करत, गिरिजासुत लंबोदर, गिरिजासुत लंबोदर। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। The story begins in 1942 during the Quit India movement. In the year 1943, Shri Ghanshyam Das Birla, an eminent Indian industrialist with vision and foresight, conceived an idea of establishing a commercial bank with Indian capital and management. The United Commercial Bank Limited was incorporated to give shape to that idea on the 6th of January 1943 with an issued capital of rupees 2 crores and paid up capital of rupees 1 crore. The bank was started with its head office based in the commercial hub of Kolkata and simultaneously opened 14 branches across India, signaling its vision for an expansive presence. Mahatma Gandhi, the father of our nation and an inspiration to millions of Indians, was one of the first customers of UCO Bank.
Branch expansion was the primary focus during the formative years of the bank, particularly in rural areas, and the bank achieved several unique distinctions, priority sector lending and other social uplift activities. Besides providing inland banking services through its vast network of branches in India, UCO Bank made its footprint outside India in Singapore, Hong Kong and Tehran, Iran. The Government of India nationalized United Commercial Bank on the 19th of July 1969, whereupon 100% ownership was taken over by the government in United Commercial Bank. This historic event brought about a sea change in the entire fabric of the bank's thinking and activities, commensurate with the government's socio-political approach of mass banking as against class banking hitherto practiced. Though the logo of the bank had changed in the year 1958, 1973 and 1983, but the year 1985 opened a new chapter for the bank as the name of the bank changed to UCO Bank by an Act of Parliament. The customer-friendly and socially committed character, however, remained even with this change in the name, which has, over the years, been regarded as one of the well-known and vibrant banks in the country. The bank used the latest in technology as a great enabler in empowering customers to bank from anywhere at any time by introducing alternative banking channels to facilitate 24-hour banking across the globe, taking banking convenience to the customer's fingertips. UCO Bank has played a major role in the financial and industrial expansion of our country. With a countrywide network including specialized and computerized branches in India and overseas, UCO Bank has marched into the 21st century, matched with dynamism and growth. But the growth story of the bank would not have been possible without the relentless efforts of its employees. UCO Bank has ensured access to its services to customers at the highest and remotest corners of India by setting up branches at the most inaccessible spots on the map. But our journey would not have been possible without the unshakable trust of our esteemed customers. Rather than resting on its past laurels, the bank is marching steadily towards its 100 years with products and services to suit individuals and businesses from all strata of society, truly honoring your trust. Very warm welcome, ladies and gentlemen. This is Shweta Tiwari welcoming all of you to the 78th Foundation Day of UCO Bank, a bank that honors your trust. It's indeed a very special moment for all of us because the entire UCO Bank Parivar has gathered here today to celebrate and witness this auspicious occasion. None other than the 78th Foundation Day of UCO Bank. From the entire Parivar, which includes the MD and the CEO sir, the ED sir, entire senior management, each and every employee from across the nation, and last but definitely not the least, all our valued consumers and customers without whom this milestone would have been impossible to achieve. So a very big thank you to all of us. It has been a long and glorious 78 years since UCO Bank began its journey and continues to stride ahead with excellence and continuous support to its customers from different strata of the society and providing them with products that benefit both their individual and business needs alike. UCO Bank continues to uphold its rich banking culture and continues to look forward with a commitment to bring greater benefits to its millions of customers. May I now have the pleasure of requesting the Managing Director and Chief Executive Officer of UCO Bank, Shri A.K. Goel and Mr. A.K. Vyas, to kindly come up on stage and light the lamp on this auspicious day. I would request Shri A.K. Goel to share a few words with us and give his welcome speech.
Thank you very much, Sweta. Shri Ajay Vyas, Executive Director, UCO Bank, all my corporate GMs, our esteemed patrons, distinguished guests, and UCO family. Ladies and gentlemen, on this auspicious day of 78th Foundation Day of UCO Bank, I extend my warm regard to everyone for being part of our UCO family. As you all are aware, year 2020 was by far the most challenging in modern time, with pandemic creating a sense of despair during its initial onset, but in matter of few months, mankind bounced back with renewed vigor to overcome the challenges, displaying our adaptive resilience. I must confess, I miss standing in front of you today to celebrate 78th Foundation Day of UCO Bank. Nevertheless, I am happy to connect with you virtually through a safer environment, adhering all the guidance of COVID protocol. Friends, UCO Bank has carved a distinct identity in Indian banking. I take this opportunity to pay rich tribute to Sri G.D. Birla, a visionary and architect of India's industrial growth, and also founder of this great institution, founded on 6 January 1943. During the peak of India's independence movement, UCO Bank has been constantly nurturing enterprises, realizing our people's dream, and serving the national priorities. I would like to thank patrons who trusted us and also the leadership that steered the bank through decades. From a humble beginning of in 1943, with founding branch at Indian Exchange Place, Kolkata, we are currently having over 22,300 employees, having 3,087 branches, with overseas presence in Hong Kong, Singapore, and rep office in Iran. Today, we are having 2,266 ATMs, 80 lobbies, along with over 3,000 BCs serving the remote of the area of India. We are fortunate to have won the trust and love of over 3 crore customers. Our deposit base over rupees 2 lakh crore and a business mix of rupees 3.2 lakh crore is an indicator of trust reposed by customer in us. We at UCO Bank have always strived to put nation first and aim at all round growth of all sections of the society. My UCO family did a commendable job by being at the front line for providing uninterrupted service during lockdown due to pandemic. Also, in a very short time, we managed to provide COVID relief package in the forms of moratorium to stress borrower, facilitate direct cash transfers under PM Garib Kalyan package, extending fresh credit lines to MSME and farmers to restart economic activity. Truly, each one of you is a COVID warrior for me. This Foundation Day is a testament to dedicate efforts of UCOites proactive adapting innovations while keeping our core value intact. Friends, we have seen through many challenges and emerge stronger with every passing decades. It has been our constant endeavor on creating high performance bank focused on strong financial. Currently, if you see, our net NPA is 3.63%, our leverage ratio is 3.92%, our capital adequacy ratio is 11.80%, and return of assets is positive. You all are aware that in March 2020, we have shown the profit after 17 consecutive quarter losses. Moreover, bank's operating profit, net interest income, and other income have been constantly improving. Operating profit in last year
that is 2019-20 was at rupees 4,836 crore, which was the highest in last 5 years. Our capital adequacy ratio is 11.8% as well as provision coverage ratio at around 90%, which have improved markedly while stress book has come down. Friends, despite the pandemic, there were bright spots in our performance last year. I am happy that we ended the previous decades with net profit in March 2020 quarter, June 2020 quarter and September 2020 quarter after 17 quarter of consecutive losses. Even under non-financial parameter, we did a great job. UCO Bank was the anchor bank for all public sector bank and lead the way in launching doorstep banking service to customer of public sector banks through a single platform. And I hope this will be the game changer for all the public sector bank. In terms of the technology, we are upgrading our CBS platform to a newer version of Finacle, that is from Finacle 7 to Finacle 10. We strongly believe in creating customer convenience while transacting with the help of the digital initiative like UCO Cash for cardless withdrawal. It means you can transfer the money from one district to another district without your physical visit. Suppose you want to transfer the money to your daughter, to your son sitting at Calcutta to Bombay, you can generate a single PIN on your mobile, and that PIN you can give to your son and daughter and they can visit any ATM of the UCO Bank and withdraw the money at the time of their need. We are also adopting the video KYC for account opening and submitting live certificate. UMA, a virtual chatbot for a quick solution. I am extremely happy that through various initiatives, we turn around the bank in the last 2 years, and I strongly believe that next decade will be the golden period for the UCO Bank. Friends, UCO Bank has a proud legacy. Our future perspectives are even brighter. We are accordingly building new capacity in credit underwriting, monitoring, recovery, human resources as well as digital banking. To celebrate the 78th Foundation Day, we are launching Green Channel Banking, a next generation kiosk banking facility to provide enhanced digital banking experience to our customers. We will also provide the gift card facilities. We are also trying up to tie up with the NESL for education of the contracts digital by making this tie up with the NECL. All our documents will be the paperless. They will be digitally stored. We are not required to keep the document in physical form. Everything will be digitized. We are also launching Realty Magazine as a ready reckoner for field functionary. We are also launching few non-financial service on WhatsApp for ease of the customer. Soft POS, an app-based digital payment acceptance system and a revamped website. Despite challenges, our long-term prospects remain sound. Government has taken lot of initiative, lot of measures to revive the consumer demand as well as investor confidence. Recently, government has announced Atmanirbhar package, which was more than 20 lakh crore, and production linked incentive aimed at promoting domestic manufacturing as well as the industry, other industries also, which will act as a catalyst in the reviving capex spending and create huge opportunity for the financing. We have also been very prompt in passing on the benefit of the interest rate cut to our customer. We have also shifted all our MSME customer from the MCLR to external benchmark. I can confidently say UCO Bank is ready for the opportunity and we will grow vigorously with economy turning corner. I urge all UCOites to work as one team, pursuing one dream and exceed the expectations and make UCO Bank a top class bank in the days ahead. My best wishes to UCOites and their family members on this auspicious occasion. For bank, I once again extend
our gratitude to our stakeholder, whether it is a regulator, whether it is a government of India, and all my patrons for being with us in this difficult time also. We are committed to deepen our valued relationship further. Thank you very much. Ladies and gentlemen, that was the MD and CEO of UCO Bank, Shri A.K. Goel, with his welcome speech. I thank him once again for the amazing insights. And now, may I request the Executive Director of UCO Bank, Mr. Ajay Vyas, to join us on stage and share a few words. Very warm welcome, sir. यूको बंधुओं नमस्कार। आप सभी को 78वें स्थापना दिवस एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बीते वर्ष ने हमें बहुत नसीहत और ज्ञान दिया है। साल बहुत मुश्किलों से भरा था और खासकर बैंकों के लिए इसका देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। जिस तरह आपने इस पैंडेमिक में काम किया है, आप सब बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। कूडोज टू ऑल यूकोइड टीम। अब लगता है हम वापस सामान्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इकोनॉमी में मैं कुछ ग्रीन शूट्स देख रहा हूँ, जैसे पेट्रोल और डीजल की खपत प्री कोविड स्टेज पे आ गई है। भारतीय रेल की मालगाड़ी क्षमता वापस अपने दिसंबर 19 के चरण पे आ गई है। रिकवरी बहुत अच्छी हो रही है, न सिर्फ बैंकों में, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में, एनबीएफसी में, प्राइवेट सेक्टर्स में, और डिसबर्समेंट भी हम सितंबर 2020 के बाद बहुत अच्छा देख रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिस्ट्रक्चरिंग की जो प्रक्रिया हमें दी गई थी, उसमें बहुत कम कंपनियां, प्रमोटर्स, एंटरप्रेन्योर्स हमें अप्लाई कर रहे हैं। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की बिक्री में बहुत अच्छा सुधार आया है। ई कॉमर्स पोर्टल पे जो सेल हो रही है, ये हमें बहुत पॉजिटिविटी और ले जाती है। इस पैंडेमिक ने इस बार दुनिया बदल के रख दी है। हमें भी बदलाव करना होगा। दुनिया वर्चुअल और डिजिटल सेक्टर की ओर बढ़ रही है। बैंकिंग क्षेत्र में भी भारी बदलाव आ रहे हैं। हेड ऑफिस इन्हें पूरे मन से अडॉप्ट कर रहा है। आप इन बदलावों से डरे नहीं, ये बदलाव इनेविटेबल हैं। हमने जब 1991 में जब देश ने लिबरलाइजेशन देखा था, हमारी इकोनॉमी लिबरलाइज हुई थी, तब बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स मार्केट में आ गए थे, सीबीएस मार्केट में आए थे। ऐसा लगता है हम उन चेंजेस को शायद सही समय पर अडॉप्ट नहीं कर पाए। हमने पूर्व में जो गलतियां की हैं, वो किसी भी कीमत पर हम नहीं दोहराएंगे। जैसे हम क्या नहीं कर पाए थे, हमारा कस्टमर एक्विजिशन इतना अच्छा नहीं था, मार्केट शेयर हमारा नीचे गिरता गया, हमारे अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं थे, हमारा एनपीए बढ़ता गया, क्रेडिट मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये में भी हमारी बहुत कमियां थी। हम सही तरह से हमारे स्टाफ का मूल्यांकन नहीं कर पाए। हमारा ध्यान हमेशा टॉप लाइन पे था, कभी प्रॉफिटेबिलिटी पे हमने ध्यान नहीं दिया। ट्रेनिंग, सक्सेशन प्लान, ये भी बहुत कमी रही। हेड ऑफिस इन सभी का मुद्दों पे काम कर रहा है और हम एक बहुत मजबूत बैंक बनाने जा रहे हैं। अभी हम मुख्यतः 5 क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। पहला क्षेत्र है लीडरशिप। हम बैंक को एक नया विजन, एक नई स्ट्रेटजी और एक नई मार्केट पोजीशन दे रहे हैं। हमारे एमडी द्वारा दिया गया स्लोगन वन टीम वन ड्रीम, इसी का एक उदाहरण है। हम अपनी बॉटम लाइन पे फोकस कर रहे हैं। हम बैंक को ईस्ट इंडिया की बेस्ट में बनाने जा रहे हैं। आपने विगत 4-5 क्वार्टर्स में देखा होगा कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निरंतर बढ़ता जा रहा है। हम इंक्लूसिव लीडरशिप की बात कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। हम चाहते हैं बिजनेस, हर ब्रांच, हर शाखा, हर एम्प्लॉय से जनरेट हो, हर शाखा एक प्रॉफिट सेंटर हो, हर स्टाफ एक प्रॉफिट सेंटर हो। हम इस पे काम कर रहे हैं। इसी तरह से हमारा एक रिव्यू मैकेनिज्म भी है। हमने कई सारे बदलाव अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी किए हैं। हमने कई सारे नए डिपार्टमेंट खोले हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी डिपार्टमेंट। हमने एफआई के लिए नया डिपार्टमेंट खोला है। एक हमने इंश्योरेंस सेक्टर के लिए नया डिपार्टमेंट खोला है। हमने बहुत सारे हब्स खोले हैं जहां हम रिटेल, एमएसएमई और एग्रीकल्चर के लिए लोन को सैंक्शन कर रहे हैं।
कई सारे डिपार्टमेंट्स हमने हेड ऑफिस में भी रीअलाइन किए हैं। एक परफॉर्मेंस कल्चर और एचआर डेवलपमेंट पे भी बहुत काम किया है हमने। अपार के अंदर मार्क्स को हमने बहुत सारा आपके काम से जोड़ दिया है, सब्जेक्टिविटी ख़त्म कर दी है उसके अंदर, और बहुत सारे जो नए सेक्टर्स हैं उसके लिए अलग से मार्क्स हमने अलॉट कर दिए हैं। ब्रांचों की क्या रैंकिंग होगी, इसमें भी हमने नए पैरामीटर्स को डाला है। आप लोगों के रिव्यू मैकेनिज़्म में हमने बदलाव लाए हैं। एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी हमने लॉन्च किया है, सक्सेशन प्लान लेकर आए हैं, और इससे भी ज़्यादा इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान भी हमने डिज़ाइन किए हैं हमारे स्केल 4, स्केल 5, स्केल 6 ऑफिसर्स के लिए। ट्रांसफ़र पॉलिसी में बदलाव आया है। हम एक साइंटिफिक तौर पर हम बजट को अलोकेट कर रहे हैं। नया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को हमने लागू किया है। हम बहुत ही इंटेलिजेंट MIS को हेड ऑफिस से पुश कर रहे हैं। हर स्टाफ के लिए एक नया डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हैं जो आपको HRMS पोर्टल में दिखेगा। हर एम्प्लॉय अपना परफॉर्मेंस वहाँ देख पाएगा, क्वार्टरली, मंथली क्या टारगेट्स मिले हैं, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसको कितने नंबर मिलने वाले हैं। तो एक बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, और यही ट्रांसफरी प्रमोशन में भी आपको देखने को मिलेगी। जो दूसरा आयाम है मेरा, वो है मार्केटिंग और सेल्स। इस पे ये कभी यूको बैंक में काम नहीं हुआ था, इस बार हमने इस पे काम किया है। एक नया मार्केटिंग वर्टिकल खड़ा किया है, लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है और उनको जोन्स में पोस्ट किया है। हर शाखा में हमने एक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर की अपॉइंटमेंट की है। कस्टमर को हम यहाँ सेगमेंट कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह के कस्टमर बेस हमारे पास हैं, क्या पोटेंशियल हमारे पास है, हम किस तरह से उनको सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, उसके लिए हम डेटा माइनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट MIS मिलती होगी इस बारे में। हम प्रोडक्ट ऑफरिंग भी चेंज कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, उनमें नया डेवलपमेंट कर रहे हैं, पीयर बैंक के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। हमने अभी हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन में भारी बदलाव किए हैं, और हम ये कस्टमर सेंट्रिक होते जा रहे हैं। इसमें ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं। हमने अपना सोशल मीडिया विंग स्टार्ट किया है। हम ट्विटर हैंडल, लिंक्डइन, फेसबुक, इन सब पे आ रहे हैं। साथ में हम एक काम और भी अच्छा कर रहे हैं कि हम फेसबुक बैंकिंग भी चालू कर रहे हैं साथ ही में अभी। तो आपको कुछ ही दिन में ये पता चलेगा कि फेसबुक चालू हो रही है। आज स्थापना दिवस के दिन हम इसको आपको समर्पित भी करने वाले हैं इस बात में। सेकंड थिंग, बहुत जो अच्छी बात हुई है कि हर ब्रांच में हमने मार्केटिंग के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट की है। एक डिपार्टमेंट है जो कम्युनिकेट करता है, डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, और ये आदमी जो स्टाफ हमने आइडेंटिफाई किए ब्रांचेस में, ये हमारा एक ब्रिज है बैंक और कस्टमर के बीच में। इसके जो डेटा हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं, आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। हम ये समझते हैं अच्छी बात कि अगर बैंक को ग्रो करना है, अगर हमको हमारा मार्केट शेयर को संभाल के रखना है, तो हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर करना होगा। उसके लिए हमें सेल्स पावर चाहिए। हम सेल पावर खुद अकेले नहीं कर सकते। हमने मार्केटिंग ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किया है, हम उनको ट्रेंड भी करने वाले हैं। एक एजेंसी को अपॉइंट किया है जो मार्केटिंग और सेल्स में आइडेंटिफाइड स्टाफ को ट्रेन करेगा। साथ ही में हम थर्ड पार्टी वेंडर्स को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, वहाँ से भी हमारी लीड जनरेट होगी। एक लीड मैनेजमेंट पैकेज हम लेकर आ रहे हैं, जो आप जितनी भी लीड हमारी जनरेट होगी, उन लीड को वो अमलगमेट करेगा, उसको मॉनिटर करेगा और उसके ऊपर MIS जनरेट करेगा। ये लीड मैनेजमेंट सिस्टम कुछ ही दिन में आपको उपलब्ध हो जाएगा। सबसे आखिरी में इसी मार्केटिंग सेल्स में है कस्टमर सर्विस। हमने एक कस्टमर कंप्लेंट मैकेनिज्म का एक नया मॉडल दिया है। जो टेट हमारा 11 दिन का था टर्न अराउंड टाइम कंप्लेंट रिजोल्यूशन का, उसको घटा के हमने 5.4 डेज़ कर दिया है। आपको ये बात बहुत अच्छी समझ लेनी चाहिए कि अगर कस्टमर कंप्लेंट्स को हम रिड्रेस नहीं करते हैं, तो ये बैंक के कस्टमर बेस को कमज़ोर करता है, हमारे बिजनेस को कमज़ोर करता है, और यही एक ऐसा पैरामीटर है जो कासा मोबिलाइजेशन में हमारी बहुत मदद करता है। तो इस पे बहुत ज़्यादा जोर है। इंटरनल ओम्बुड्समैन हमारे पास हैं, हम इस पे काम कर रहे हैं, और कोशिश ये करेंगे कि ये जो टैट हमारा 5.4 डेज़ का है, इसको घटा कर हम 24 घंटा कर दें। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण आयाम है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो है डिस्ट्रीब्यूशन।
हम अपने बैंकिंग उत्पाद को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। बैंकिंग हमारा एक ट्रेडिशनल मैकेनिज़्म है जहाँ से हमारे बैंकिंग के उत्पाद वो हो रहे हैं। पेंडेमिक के बाद में चीज़ें में बदलाव आया है। भारत सरकार की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो मॉडल है उसके बाद बहुत ज़्यादा बदलाव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आ गए हैं। हमने इसको अडॉप्ट करते हुए हमने एक नई बीसी पॉलिसी लेकर आए हैं इस साल में आप लोगों के लिए, जिसके अंदर बेटर कंपनसेशन है बीसी के। हम लोगों ने देखा था कि करीब 4 से 5,000 6,000 का कंपनसेशन एक बीसी को मिलता है, जो कि बहुत ही कम है। उसको बढ़ाने के लिए, बीसी बिज़नेस बढ़ाने के लिए जो अभी पॉलिसी आई है, इसके तहत तकरीबन 12 से 13,000 रुपये पर मंथ का बीसी को कंपनसेशन मिल रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है और जो ये भी इंगित करता है कि हमारा बिजनेस बीसी के माध्यम से बढ़ रहा है। हमने ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स जैसे मोबाइल बैंकिंग, एटीएम कार्ड्स, पॉस टर्मिनल्स, इनका फुटप्रिंट भी बहुत बढ़ा दिया है। बैंक ने डोर स्टेप बैंकिंग भी ली है और हम थर्ड पार्टी वेंडर्स को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए। आपको इंश्योरेंस स्कीम, म्यूचुअल फंड अब मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी उपलब्ध होंगे। प्रोसेसेस को हमने, जो चौथा आयाम है मेरा वो प्रोसेसेस है, उसमें भी हमने काफ़ी बदलाव किया है। पहला है, हमने कॉस्ट कंट्रोल कल्चर के ऊपर ध्यान दिया है। तकरीबन 20% कट हम कंट्रोल एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है, आप सबका साथ है और हमें इसमें काफ़ी सफलता मिल रही है। सबसे बड़ा जो खर्चा हमने देखा था वो जनरेटर सेट्स में था, हम उनको इन्वर्टर से रिप्लेस कर रहे हैं। कई प्रोडक्ट के हम प्रोसेसेस ऐसे चेंज कर रहे हैं जिससे उनकी कॉस्टिंग कम हो जाए। हमने डेबिट कार्ड के इशुएंस की प्रोसेस को चेंज कर दिया, जहां हमारी इनकम बढ़ गई, हमारा ग्रीन प्रिंट जनरेशन हमने चेंज कर दिया ताकि ग्रीन प्रिंट प्रिंटिंग हमने बंद कर दी। हम बैक ऑफिस सेंट्रलाइजेशन भी कर रहे हैं प्रोसेस को, हब्स बना दी हैं, रिटेल, एमएसएमई, एग्रीकल्चर की हब्स बना दी हैं हमने। हम बहुत सारी चीज़ों को आउटसोर्स कर रहे हैं फिनटेक में, जो हमें लगता है कि ये काम बाहर दिया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका स्टेशनरी प्रिंटिंग है, हम एक सेंट्रलाइज्ड प्रिंटिंग सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको शायद ये मिल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात और भी हमारी है कि हमने अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। हम ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में बैंकिंग मोबाइल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो जब तक हमारे पास मोबाइल बैंकिंग के लिए कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, शायद हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने एंड्रॉयड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म के लिए एक टीम बनाई है जो मोबाइल फ़ोन पे काम कर रही है और नए नए प्रोडक्ट, नए नए उत्पाद, नए नए ऐप को वो डेवलप करेंगे। फिनेकल 7 टू फिनेकल 10 हम जा रहे हैं। हमने नया साइबर सिक्योरिटी के लिए, नई सॉक के लिए हमने आरएफपी फ्लोट कर दी है। रिटेल लोन्स, एमएसएमई लोन, एग्रीकल्चर लोन के लिए हम नए पैकेज पे जा रहे हैं। आप एलओएस पे काम करते थे, हम नया पैकेज लैंड परफेक्ट लेकर आ रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग हमारी बहुत पुरानी है और हम नए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नए न्यू एस्पिरेशंस हैं कंज्यूमर्स की, हम उसको मीट आउट नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए हम नया इन्फोसिस से नई हम पैकेज ले रहे हैं। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग पे अभी कदम रख दिया है। हमारी इंटरनेट बैंकिंग, हमारी ईमेल सर्विसेज और हमारी ई लर्निंग के जो पैकेजेस हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कर रहे हैं। जो पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट आयाम है मेरा, वो है क्रेडिट कल्चर को बदलना, क्रेडिट पॉलिसीज़ को ठीक करना और क्रेडिट के ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्पिटेंस को बढ़ाना, ये हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है। इसमें हमने ट्रेनिंग, ई लर्निंग, रीबैलेंसिंग ऑफ आवर लोन बुक। देखिए, जब बैंक पीसीए में आया था तो हमारा कॉर्पोरेट लोन बुक बड़ा साइज़ का था। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी कि वी हैव टू रीबैलेंस। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू दैट माई रिटेल बैंकिंग हैज़ गॉन टू 63% एंड 37% इज़ माई कॉर्पोरेट लोन बुक। हमने एक काम और अच्छा किया, जो असेट क्वालिटी थी हमारी, उसकी रेटिंग थी, वो हमने हम बहुत ऊपर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ए रेटेड जो कस्टमर्स थे मेरे पास, वो तकरीबन 10% थे, जो अब बढ़ के 20% हो गए। इसका मतलब है मेरी असेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। हम लोग कस्टमर एक्विजिशन पे ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ हम लेकर आए हैं, एसएमएस बेस्ड प्रोफाइलिंग, जिससे हमारे अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स को सुधरें। एक हमने एसएमएस बेस्ड प्रोफाइलिंग का सिस्टम लागू किया है, जो 1 दिसंबर से हमने उसको कंपलसरी मैंडेटरी कर दिया है। इस प्रोसेस में आपके नए कस्टमर के कुछ पैरामीटर्स मोबाइल से एसएमएस के थ्रू
डेजिग्नेट नंबर पे भेजते हैं और आपको उस कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग कुछ ही सेकंड में आपके फ़ोन पे आ जाती है, तो जिससे आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। हमने आपके डिसीजन मेकिंग मॉडल में भी बदलाव लाए हैं। हम अब फिनटेक को यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट थर्ड पार्टी वेंडर्स को यूज़ कर रहे हैं हमारे डिसीजन मेकिंग मॉडल में। कस्टमर्स के बारे में पूरी जानकारी रखना, उसको 360 प्रोफाइलिंग करना, उसका लीगल बैकग्राउंड चेक करना, उसका फैमिली बैकग्राउंड चेक करना, उसका सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म चेक करना, उसका क्या स्टेटस है, दूसरी बैंक में क्या स्टेटस है, इन सब की जानकारी पहले हमें नहीं होती थी। अब हम लोगों ने फिनटेक कंपनी से हैंडशेक किया है और ये सारी चीज़ें हमें अब अवेलेबल हैं। जब आप लैंड परफेक्ट यूज़ करेंगे, तकरीबन मैं 15 फिनटेक पॉलिसीज़ को यूज़ करूँगा। आप बैलेंस, हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लेते हैं प्रॉस्पेक्टिव कस्टमर का, उसको कैसे पढ़ना है, उसमें क्या चीज़ देखनी है, एक बैलेंस शीट में क्या चीज़ देखनी है, बैलेंस शीट भी हज़ार तरह कैसे आती हैं, उन बैलेंस शीट्स को कैसे रीड करना है, बड़ा मुश्किल सा काम है। हमने अभी फिनटेक जो हमारे यूज़ किए हैं वो बैलेंस शीट को रीड करेंगे, आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को रीड करके आपको इंटेलिजेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। साथ में एक नया डिपार्टमेंट और खोला है हमने रिस्क के लिए, दे कॉल्ड क्रेडिट रिस्क वर्टिकल। ये रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम करता है। आपकी अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स को सुधारने के लिए ये रिस्क एंगल से एक प्रपोजल को देखता है, तो आने वाले समय में हमें दिक्कत ना हो, हमारी क्वालिटी ठीक रहे, उसके लिए ये काम चल रहा है। हमने रिस्क बेस्ड प्राइसिंग पे काम किया है, हम अब रेरॉक को यूज़ कर रहे हैं। क्रेडिट मॉनिटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मेरे लिए। इसके लिए हेड ऑफिस लेवल पे हमने अर्ली वार्निंग सिग्नल दिया है, जो तकरीबन 1 साल पहले ये बात बता देगा कि अकाउंट में डेलिक्वेंसी आ रही है, ताकि हम सही वक्त पर सही कदम उठा सकें और हमारी असेट क्वालिटी को मेंटेन कर सकें। आज हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं है कि हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि ये अकाउंट डेलिक्वेंट होने वाला है। ये तो हमारे प्रयास थे, हमने जो 1-1.5 साल में किए, इन सब प्रयासों का फल आपको देखने को मिलेगा। पर एक बात और भी अच्छी है, कुछ प्रयासों के फल ऑलरेडी देखने को मिले हैं। हमारी बैलेंस शीट की साइज़ ठीक हो रही है। अगर आप एक नज़र डालें हमारी बैलेंस शीट पे, तो आप पाएंगे कि हर एक सेक्टर में हमारी ग्रोथ हुई है और मैं आप सब लोगों को इसके लिए बधाई देता हूं कि आपके प्रयास बहुत प्रशंसनीय हैं। आपके प्रयासों के बगैर हम बैलेंस शीट को इतना मजबूत नहीं कर सकते हैं। आपके सारे प्रयास, आपकी मेहनत रंग ला रही है। पर आप सोचिए, ये सब काफ़ी नहीं है। प्राइवेट, स्मॉल बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, एनबीएफसी के सक्रिय होने से बाज़ार बहुत पेशेवर हो गया है, बहुत प्रोफेशनल हो गया है। गला काट, कट थ्रोट कंपटीशन हो रही है। जब तक हम प्रोफेशनल रवैया नहीं अपनाएंगे और उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं करेंगे, बहुत एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, हमारा मार्केट शेयर नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए हमें बहुत कठिन प्रयास करने होंगे, नई नई तकनीकी सीखनी होंगी, नई टेक्निक सीखनी होंगी। जैसे जो टेक्नोलॉजी हम यूको बैंक ने अपनाई है, उनको आपको भी अपनाना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। नए ग्राहकों को बैंक से जोड़ना पड़ेगा और हर काम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पड़ेगा। बगैर एक्सीलेंस के हम आगे नहीं बढ़ सकते इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। आई ऑफन कोट एरिस्टोटल, excellence is never an accident. It's always a result of high intention, sincere efforts, and intelligent execution. It represents the wisest choice of many alternatives. Choice, not chance, determines our destiny. It takes grit to achieve greatness. Thank you all. Again, my best wishes for 78th Foundation Day and New Year. Thank you. Heartiest thanks to our ED sir, Mr. Vyas, for his amazing words and insights. And now, ladies and gentlemen, on this auspicious day of 78th Foundation Day of UCO Bank, we have some amazing product launches for our customers. May I one more time invite our MD and CEO Sir, Shri A.K. Goel on stage. It gives me immense pleasure that on 78th Foundation Day of the UCO Bank, we are launching some new product. The first one is Green Channel, a next generation kiosk banking facility to provide enhanced digital banking experience. This is going to enhance overall efficiency of the system, save valuable time of the customer
eliminate redundancy in the filing manual form by customer and then CBS entry by customer.
and gentlemen, it's time now to let our hair down and relax ourselves with some lighter moments. And there's no better way to do that than with good music. So on this 78th Foundation Day of UCO Bank, we have with us two amazing singers who will serenade all of us with their foot-tapping and soulful numbers. We have with us Dipayan and Madhura. Madhura, a very well-known playback singer both in Bollywood and Tollywood, and Dipayan has performed across nation and is a very well-known face because he has been a Saregama finalist. So ladies and gentlemen, please put your hands together for Dipayan. Hello, how are you? I'm very well, Dipayan. Very warm welcome. How are you doing? I'm doing great, and Happy New Year to you. Same to you, and I'm sure you have some lovely numbers ready for all of us, and we can't wait to hear you. Look forward to it. The stage is all yours, Dipayan. Thank you so much. Thank you. Namaskar. He is wishing everyone, MD sir, ED sir, and the whole of the UCO family, UCO Bank family, a very prosperous new year from all of us. And I'm going to start off with one of my favorite compositions, and it's been sung by the great Kishore Kumar. You're all favorite, and the song which I'm going to sing, I'm sure you will love this one because it's one of your favorites for sure. So here we start. You can also join me if you want to, because this is a known song for you all. So sing with me from the other side. वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। झुकी झुकी निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, झुकी झुकी निगाह में कहीं मेरा ख्याल था, दबी दबी हंसी हसीन सा गुलाल था। मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, न जाने कुछ लगा मुझे कि मुस्कुरा रही है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। वक्त के सितम
हंसी नहीं, ओ आज है यहाँ, कल की बात थी, वक्त से परे अगर मिलते हैं कहीं, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे हो ना गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। All right, this song is very close to my heart. It's one of my favorite songs sung by Arijit Singh, a sensation of this generation, you can say. So here it goes. मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा है, तू जो मेरे नाल तुरता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा हुण है तेरा कि मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी जान मेरी। मैं तेनू समझा बाकी ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझा बाकी ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझा बाकी ना तेरे बिना लगदा जी। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा होए, तू जो मेरे नाल तुरता तुर पे मेरी आसा, हो मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तुरता तुर पे मेरी
कैसा जीना मेरा हुण है तेरा कि मैं करा तू कर एतबार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करूं इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी Thank you very much. Thank you. All right, the next song is another great immortal song by Kishore Kumar once again. So here it goes for you all. जो भी गाना चाहते हैं मेरे साथ गाइए because I can all see you in front of me and I just want you to sing along with me if you want. Please join me. और ख़ास करके ये गाना तो सबको मालूम है और बिल्कुल गा सकते हैं मुझे आई एम श्योर आपको लिरिक्स भी याद है चलिए ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ हाय अब क्या सुनाए ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ तब हुआ ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ तब हुआ ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ हम क्यों शिकवा करे झूठा क्या हुआ जो दिल टूटा हम क्यों शिकवा करे झूठा क्या हुआ जो दिल टूटा शीशे का खिलौना था कुछ ना कुछ तो ना था हुआ ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ तब हुआ ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ भावे कि न भावे
আমি শুধু ভাবি যে প্রেম দিতে জানে তার নেই কোনো দাবি। হায়, মনে পড়ে কেন তারে, মনে পড়ে বারে বারে তারে। এ কি হলো, কেন হলো, কবে হলো জানি না, শুরু হলো শেষ হলো, কি যে হলো জানি না তো। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ। Thank you. This is one of my favorite again. So, all right. थोड़ा mood change करते हुए we'll go into a different kind of a groove, and this is also an immortal song by the great Manna Dey Saab. So here it goes. मेरे ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरे ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। You can clap it if you want. ये शौकिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। है मेरे ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तुम मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तुम मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक जावेदा, ओ सनम मैं तेरा आशिक जावेदा। है मेरे ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। है मेरे ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। है मेरे ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ
तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। Thank you so much. वाओ दीपायन, क्या गाया आपने। आपने इतनी अच्छी एक बोलते ना समा बांध दिया कि आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स आपके इस सुरीले आवाज़ का बहुत ही अच्छे से लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन हम आपके गले को थोड़ा सा आराम देंगे। आपने बहुत गाया है, लेकिन हाँ, आपको जाने नहीं देंगे, हमारा मन नहीं भरा है अभी भी। सो कैन यू प्लीज टेक योर सीट। इन द मीन टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बारी है, मैं बुलाऊंगी हमारे अगले सिंगर को। जैसे कि वो दिखने में सुंदर है, ठीक वैसे ही उनकी आवाज़ और भी ज़्यादा सुंदर और सुरीली है। तो चलिए दोस्तों, इट्स टाइम नाउ टू ब्रिंग अबाउट आवर नेक्स्ट परफॉर्मर ऑन स्टेज, मधुरा। वेरी वार्म वेलकम प्लीज, द स्टेज इज ऑल योर्स। हाय मधुरा, हाउ आर यू? गुड। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप Happy इतनी New प्यारी Year. लग रही हैं कि क्या बताऊँ। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। आपका ये साल माशाल्लाह बहुत अच्छा जाए, एंड ऑल द व्यूअर्स आर डेफिनेटली नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू मी नाउ बिकॉज दे वांट टू हियर योर मेलोडियस वॉइस, सो द स्टेज इज ऑल योर्स। नमस्कार, यूको फैमिली के सभी को नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत इन्जॉय कर रही थी मैं उधर से दीपायन के परफॉर्मेंस। अभी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को जितना आनंद दे सकूँ। शुरू कर रही हूँ लता जी के एक इमॉर्टल गाने से। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। तो अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, तो अगर उदास होगा तो उदास होंगी मैं भी, नजर आऊं या ना आऊं तेरे पास होंगी मैं भी, तो कहीं भी जा रहेगा मेरा साया साथ होगा, तो जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया मेरा साया। अभी के ज़माने के एक गाने पे आती हूँ, मोनाली ठाकुर के गाए हुए।
रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके रूठ गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके रूठ गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियाँ पढ़े मजाकिया। ये सारी कोयलें बनी है आज डाकिया, कुहू कुहू में चिट्ठियाँ पढ़े मजाकिया। उन्हें कहो कि ना छुपाए किसने है लिखा, बताए उसकी आज मैं नजर उतार लूं, सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके रूठ गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। थैंक यू। अभी गीता दत्त जी के गाए हुए एक पेपी नंबर बोल सकते हैं, तो आप सभी एक साथ तालियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना। क्यों हो खोए हुए सर झुकाए, जैसे जाते हो सब कुछ लुटाए। ये तो बाबूजी पहला कदम है, नजर आते हैं अपने पराए। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना।
थैंक यू। सभी के एक एक फेवरेट गाने को लेके मैं एक मेडली बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो होप सबको अच्छा लगे। हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले पास आए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले सार सार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले আমারে পরাণে আসি তুমি যে বাজাবে বাঁশি, আমারে পরাণে আসি তুমি যে বাজাবে বাঁশি, সে তো আমার সাধনা, চাই না তো কিছু তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার। কানে কানে শুধু একবার বলো তুমি যে আমার, তুমি যে আমার, ওগো তুমি যে আমার। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े
को छोटे लगते हैं ये सारे, हम तुम कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को छोटे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, कुछ ना कहो भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। क्या कहना है, क्या सुनना है, तुमको पता है, मुझको पता है। समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। Thank you so much. झुमका गिरा रे हाय, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा, झुमका गिरा, झुमका गिरा, हाय हाय हाय। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। झुमका गिरा रे। फिर क्या हुआ?
फिर क्या हुआ? एक्चुअली मैं सोच रही थी कोई अगर ये बता दे तो बहुत अच्छा होता। बड़े डायलॉग के लिए आगे थैंक यू। शेखर भी बजाए, थैंक यू। तो क्या करें अभी? डुएट गाते duet करते हैं, चलो। बेस्ट। ऑलराइट। तो ये बहुत प्यारा सा गाना है मेरा, हम लोग सबके फेवरेट गाने हैं। सो चलो फिर। चलो। Put your hands together on the other side. Come on. हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो। यूं ही फिसल गया। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो। यूं ही फिसल गया। निरिरी निरिरी निरिरी। बहकी बहकी चले पवन जोड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। बहकी बहकी चले पवन जोड़े है तेरा आंचल। छोड़ो छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो। यूं ही फिसल गया। निरिरी निरिरी निरिरी। पगली पगली, अच्छा कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। पगले पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों। पगली पगली, कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों। अरे पगले पगले, तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल क्यों। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो। यूं ही फिसल गया। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए हो। यूं ही फिसल गया। निरिरी 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 निरिरी। Thank you so much. थैंक यू। We had a lot of fun. I hope you're having fun too. So, all right, थोड़ा mood change कर सकते हैं क्या? This was a fun song, so how about A.R. Rahman? A.R. Rahman song तो बनता है यार, सबकी favorite है. So let's do a Rahman song. And the good part is that today is the great A.R. Rahman's birthday, so it's a tribute, right, from all of us. Here we go. तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं।
आजा रे आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको जान रे जान रे, इन सांसों में बस जा तू चांद रे चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू। चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको जान रे जान रे, इन सांसों में बस जा तू चांद रे चांद रे, आजा दिल की जमीन पे तू। इन सांसों का देखो तुम पागल बन के आए नहीं इन्हें चैन, मुझसे ये बोली मैं राहों में तेरी अपने बिछा दूं इन्हें, इन ऊंचे पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं घर तुम ना तुम उधर जान उम्मीद मेरी जो तोड़ो, तुमर ये जहां छोड़ू मैं, मौत और जिंदगी तेरे हाथों में दे दिया रे। तोड़ा रे हर बंधन को प्यार के लिए, जान रे आजा तुझ में समा जाऊं, दिल रे तेरी सांसों में बस जाऊं मैं, चाहत है अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर ऐसा कर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे यूं ही तड़पाना तू मुझको।
बार जो दिल दिया, एक आँख रोई तो दूजी बोलो सोएगी कैसे भला। इन प्यार की राहों में पत्थर हैं कितने, इन सब को ही पार किया। एक नदी हूँ मैं चाहत भरी आज मिलने सागर को यहाँ। सजना सजना आज आंसू भी मीठे लगे। तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे इन सांसों में बस जा तो। चांद रे आजा दिल की ज़मीन पे तो। आजा दिल की ज़मीन पे तो। आजा दिल की ज़मीन पे तो। All right, thank you. थोड़ा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज द माहौल, तो चलो थोड़ा मूड चेंज करते हैं अभी। बहुत ही रोमांटिक गाना है ये, सो लेट्स गो विद दिस। चलो I request everyone who's on the other side to put your hands together and clap with us. एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। एक मैं और एक तू, ये दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। हाँ, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। यूं नहीं मिलते हैं यार यार से, दे मुझे प्यार का जवाब प्यार से। धड़कने हुई जवा वक्त भी है मेहरबा, फिर ये कैसी दूरियां। बोलो 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 बोलो। एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। हाँ, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। La la
बोलो बोलो एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था, तो होना अरे ये तो होना ही था, तो होना ही था, ये तो होना ही था। Thank you very much. अभी ऑलमोस्ट एंड के Yeah. एंड पे आ चुके हैं हम, थोड़ा रॉक एंड रोल हो जाए. Sure, why not? Okay, so before we head on to the last song, you won't like to use the word last. ज़रूर आप सभी से बहुत फिर से मुलाकात होगी ज़रूर. और it's not a last song, but yeah, for as of now, it's the ending song. And thank you for your brilliant support and everything. And a big round of applause. I know I can't hear you, but I'm just going to imagine that I just want a big round of applause for my fellow musicians. Yeah. I'd like to introduce them first. So, Madhura, do the honors, please. Yeah. On guitar, Saurav. Partho on keyboard. We can hear you then. Shubir on tabla and octopad, Sanjeev. Thank Thank you, you so and much. let's go with this. Okay. And of course, the whole technical team behind this, the studio, the camera, the sound, and you guys, of course. Thank you so much once again. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, तो क्या सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम भर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। प्यार की राह में अपना नाम भर लिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ए इना मीना डिका, मीना मीना डिका, ए डायडा मनिका, डायना मनिका, मका नका नका, मका नका नका, ए चिका बिकारिका, चिका बिगारिगा, इना इना डिगा डिगा डे डायडा मनिका, मका नका चिका बिकारोला रिगा रम पम पोश रम पम पोश, रम पम पोश रम पम पोश। दिल दे दूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे कोई नहीं देने वाला। दिल दे दूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे कोई नहीं देने वाला। सूरत या हंसी हो, उम्र या जवां हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही तो है वो। इना मीना डिका, इना मीना डिका, डायना मनिका, ए डायडा मनिका, मका नका नका, चिका बिगारेगा, बिकारिका, इना मीना डिका डिका डे डायडा मनिका, मका नका चिका बिकारोला रिका रम पम पोश रम पम पोश, रम पम पोश रम पम पोश, इना मीना डिका, ए डायडा मनिका, पोश रम पम पोश, रम पम पोश रम पम पोश, रम पम पोश रम पम पोश। Wow, wow, wow. Awesome, awesome, awesome performance.
मतलब कि बोलते हैं ना कि मतलब कि पूरा जादू हो गया था, बिल्कुल एक समा ऐसा बांधा आपने। आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स वहाँ पर देख रहे हैं वो डेफिनेटली बैठे तो नहीं होंगे, डेफिनेटली अपने अपने चेयर से उठकर, अपने अपने बेडरूम से उठकर, जहाँ पे भी वो बैठे हैं वहाँ से उठकर बिल्कुल थिरकने लग गए होंगे। Madhura, Dipayan, Thank you. awesome performance. You serenaded us with music, melody. क्या बोलूँ, मतलब कि there is no adjective to describe what kind of an environment and ambience you guys have created. It was indeed a pleasure having you here. Thank you so very much, Thanks Dipayan to and you as well, Madhura. and thanks to जोरदार हाथ ताली please जोरों से इनके लिए, because they definitely deserve a huge round of applause. Thank you so much, Thank you and I so wish much. you both a very happy new year and Same a to great you. year ahead. Same to you. Same to you, Thank you. everyone. Take care. actually. May I now request the General Manager Corporate Communications, Mr. S.K. Shankhayan, to join us and deliver his Thanksgiving note. Thank you. A warm and delightful evening to all of you, respected guests, beloved customers, stakeholders, respected MD and CEO sir, respected Executive Director sir, and my dear UCO family. First and foremost, we raise our hearts in gratitude and thank the Almighty, the Creator, for blessing us all in this beautiful evening organized on the occasion of 78th Foundation Day of UCO Bank. I also take this opportunity to thank our guests present in this evening, our loyal customers who have trusted us for decades, and our stakeholders. We are really encouraged by your gracious presence. It is the true time to extend our wholehearted thanks to Honorable MD and CEO Sri A.K. Goyal ji for his inspiring speech and guiding us towards success. Also, from the bottom of my heart, I extend a word of gratitude to our Executive Director Sri Ajay Vyas ji for his support and advice to flourish the organizations. I extend sincere gratitude to Mr. Dipayan, Ms. Madhura, and entire sport team to make this evening brighter. Needless to mention the name of Ms. Sweta Tiwari for hosting the event and smoothly executing the same. It gives me a great joy to thank those who have helped on this occasion, all corporate general managers, all other executives of head office, the event management team, and all those who have directly and indirectly helped the entire 78th Foundation Day celebration activities to come true. Without your tireless efforts and cooperation, we might have not made these events so colorful. Thank you one, thank you all, Jai Hind. Indeed, we all had a great time, didn't we? But as they say, all good things come to an end. So it's time now to say goodbye to all of you from the stage. I thank each one of you, the speakers, the dignitaries, the singers, the guests, everyone who made this day a grand success. I look forward to having you all in the future events as well. As we all know, we are going through the pandemic, so this time the event was virtual, but I'm sure and I promise you all, next year onwards we'll have a grand event wherein all of us can be there together in flesh and blood and enjoy every moment together. Until next time, this is Shweta signing off and wishing you all a happy new year one more time. Have a great day and a great night, ladies and gentlemen. Bye-bye.